हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज हम रिव्यू करेंगे क्लास 10 सीबीएसई पेपर जो 2024-2025 के लिए रिलीज़ हुए थे और आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे आप ये क्वेश्चंस कभी भी नहीं भूलोगे और आपके पेपर में भी बहुत हेल्प होगी। ओके, क्वेश्चन 1। सो द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पासिस थ्रू दीज फॉलोइंग पॉइंट्स एंड देर आस्किंग अस कि जीरोस क्या हैं इस पॉलिनोमियल के। सो रिमेंबर, जीरोस मीन्स एक्स इंटरसेप्ट। सो एन एक्स इंटरसेप्ट मीन्स which are those points where this parabola or this graph intersects with the x-axis. And remember, x-axis always means that the y value is 0. So which are the points where the y value is 0? Very simple, right? So we have this point, negative 6, 0 and 6, 0. So the correct answer, we just have to give the x values. So negative 6 and 6. The correct answer is D. Okay, second question. The value of k for which this system of equations is inconsistent. So inconsistent, that means there is no solution to this system of equations. And when does that happen? Thoda geometrically socho. So when these are two lines, right? When these two lines have no intersection, that means they're parallel lines. Because otherwise they have to have all the same points if they're the same line or there's only one point of intersection. So to be parallel lines, we need to have these lines having the same slope. So how do we get the same slope? So if we multiply this line by 2, we get 6x, right? And how do we get this second coefficient for the y to be 10? So we have to get negative 2k to be equal to 10, right? And what value of k satisfies that? Of course, there's only one answer, negative 5. So the correct answer is B, negative 5. This would result in these two lines having the same slope, and that way they will be parallel and have no solution and be inconsistent. Okay, question 3. So we have a bunch of statements about circles and we have to tell them कि कौन सा true नहीं है, मतलब कौन सा false है. So let's read through the statements and see कि कौन सा false है. Okay, statement A. A number of secants can be drawn at any point on the circle. So this is very simple, right? If we have one circle and we have this point, for example, we can have any multiple lines that go through and intersect with more than one point, right? We can have this line, we can have this line, lots of different lines, infinitely many lines. So these are all secants from that same point. So statement A is correct. Now statement B, only one tangent can be drawn at any point on a circle. So this is a very important fact, okay? You have to remember this. That's correct. Only one tangent can be drawn from any point and it has to be perpendicular to that line which goes from that point to the center of the circle. So that's correct. There's only one tangent that can be drawn at any point on a circle. Statement C. So this is like a memorization one. A chord is a line segment joining 2 points on a circle. On the circle, yes, that's correct. That is the definition of a chord. So remember that as well. Now statement D. So from elimination, we know this has to be the right answer, but still let's see. Statement D says from a point inside a circle, only 2 tangents can be drawn. So from a point inside the circle, अगर वो inside the circle है तो वो tangent कैसे हुआ? Because it would have to go through at least 2 points on the actual circle, right? So that's correct. Statement D is the right answer, as in it is not true. So you would select option D. अगर आपको exactly सही आंसर ना पता चले फर्स्ट ट्राई में, बहुत सिंपल है, go through all the other options, eliminate them out and you'll get the correct answer. Okay, question 4. If the nth term of an arithmetic progression AP means arithmetic progression is 7n minus 4, then what is the common difference of this progression? So remember, arithmetic progression means it's a pattern wherein from each term you're adding a constant number. You're adding, not multiplying. That's geometric. So in arithmetic we are adding. So if we have 7n, that means for each term that we are going on to the next one, we are adding 7 each time, right? So the common difference between each two terms of the progression has to be 7. So the correct answer is 7. Now be careful, there's 7n as well. But the common difference is not being multiplied by n. It doesn't depend on which term you are at. Each time when you go on to the next term, no matter which one we start at, you're adding 7. So the correct answer is 7, not 7n. क्वेश्चन 5. तो इसमें हमें मिला है कोन और एक स्फीयर और दोनों की रेडियस का जो है लेंथ वो है 5 सेंटीमीटर्स और हमें बोला जाता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वो दोनों इक्वल है और हमें बताना है कि हाइट क्या है कोन की. तो इसके लिए हमें याद रखना है कि जो हमारे कोन का वॉल्यूम फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर्ड
times the height of the cone divided by 3. स्फीयर की वॉल्यूम होती है, उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब्ड. ओके, सो अगर ये दोनों वॉल्यूम्स इक्वल है सो हम इजीली यहाँ पे h के लिए सॉल्व कर सकते हैं ना. सो h विल बी, if we set these two equal to each other, then if we solve for h, we are going to multiply by 3 for this side and divide by pi r squared. So ऐसे, और बाकी जो इस राइट हैंड साइड पे था वो तो रहेगा ही. अगर आप पहले रेडियस को सब्स्टिट्यूट करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से एक ही बार आपको सब्स्टिट्यूट करने पड़ेगा रेडियस को जब हम हाइट को डिटरमिन करेंगे. तो यहाँ पे पाई कट जाएगा दोनों, यहाँ पे आर स्क्वायर्ड से सिर्फ आर बचेगा इधर, और ये 3's कट जाएंगे. सो हाइट इज इक्वल टू 4 times द रेडियस, एंड हमें रेडियस दिया है क्वेश्चन में, दोनों का रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स. दैट मीन्स द हाइट ऑफ द कोन विल बी 4 times 5, 20 सेंटीमीटर्स. बहुत सिंपल क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन 6. तो हमें बताया जा रहा है कि tan थीटा है 5/2 और tan थीटा का मतलब होता है साइन ओवर कॉस. सो साइन और कॉस का जो रेशियो है वो है 5/2, एंड हमें बताना है कि 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है. सो अगर हम यहाँ पे साइन बाय कॉस रिप्लेस कर दें सो हमें आइडिया मिलता है कि अप्रॉक्सीमेटली, मतलब किसी रेशियो में जो साइन की वैल्यू है साइन थीटा विल बी 5 to the ratio 2 of the cos. सो हम इस फॉर्मूला में भी यही सेम नंबर्स अगर सब्स्टिट्यूट करें सो वी गेट 4 times 5, क्योंकि वो न्यूमरेटर में था साइन, प्लस द कॉस वैल्यू जिसका रेशियो 2 है. एंड इवन तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 5 और 2, बट उनका जो रेशियो है वो सेम है इसलिए वो आंसर सेम रहेगा. और 4 times 5 minus 2. सो हमें क्या आता है आंसर 22/18, और इसका सिंप्लीफाई करके हमें हमारा करेक्ट आंसर मिलेगा 11/9. सो द करेक्ट आंसर इज ए. वेरी सिंपल. सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो यू कैन जस्ट टेक द रेशियो वैल्यूज एंड पुट देम इनटू द एक्सप्रेशन. ओके, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 7. सो इसमें हमें एक सर्कल दिया गया है और उसमें एक टेंजेंट लाइन बताई है पॉइंट पी से, और जो ये एंगल बन रहा है इस कॉर्ड और टेंजेंट लाइन के बीच में वो है 110 डिग्रीज. और हमें बताना है कि जो इस कॉर्ड का ऑरिजिन से जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इन पॉइंट्स को लेके वो क्या वैल्यू है. तो आपको याद रखना है कि जो कॉर्ड का और टेंजेंट लाइन का इस तरफ से एंगल बनेगा, मतलब ऑरिजिन के ऑपोजिट, जो वो वैल्यू होगी उसकी 2 times ये अंदर वाला इंटरनल एंगल होगा ऑरिजिन के साथ. तो अगर हमें यहाँ पे ये वैल्यू 110 डिग्रीज की मिली है और हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका टोटल सम अगर इस पूरे हम एंगल को लें ये ऐसे, तो वो होगा 180 डिग्रीज, है ना. तो 180 माइनस 110, तो हमें ये कॉर्ड और टेंजेंट का एंगल मिला 70 डिग्रीज. तो मैंने क्या बताया था, ये जो सेंटर वाला एंगल होगा वो होगा 70 इंटू 2, 140 डिग्रीज. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हमें बोल रहे हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है जिसके ये दोनों जीरोस होंगे, नेगेटिव √5/2 एंड पॉजिटिव √5/2. तो इसमें एक टेक्निक है कि आप सीधा इनको हर इक्वेशन में डाल के देखें अगर जो आपकी वैल्यू आ रही है वो जीरो है, क्योंकि ये हमें बताता है, ये इक्वेशन हमें बताती है एक्स वैल्यू की बेसिस पे वाई वैल्यू क्या है, और जीरो होती है एक्स इंटरसेप्ट, मतलब जिसमें वाई वैल्यू जीरो है. तो अगर हम इनको इन इक्वेशंस में डालें इन वैल्यूज़ को, तो हमें दोनों के लिए ज़ीरो आना चाहिए आउटपुट. अगर हम ट्राई करें इक्वेशन ए के साथ, अगर हम नेगेटिव √5/2 डालें फॉर एग्जांपल, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर्ड, मतलब रूट कैंसिल हो गया, तो ये हुआ सिर्फ 5/2. लेकिन इसमें अगर हम नेगेटिव √5/2 डालें तो √2 और √2 डिनोमिनेटर से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर हमारा आ जाएगा 5√5. मतलब क्लियरली हम एक भी ऐड कर लें तो ये ज़ीरो तो नहीं होगा. सो दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर, है ना. सिमिलरली अगर हम ये ट्राई करें,
अगर हम इससे √5 इंटू √5, वो 5 तो हो जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर में √2 रहेगा और वो -1 करने से भी नहीं हट सकता। सो वो 0 तो आएगा नहीं किसी भी तरीके से। सो रहा इन दोनों पे क्वेश्चन। सो अगर हम इसमें दोनों इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा एक्चुअली 0 आ जाएगा, क्योंकि 5/2 इंटू 8 होगा 20 -20। और अगर पॉजिटिव भी डालेंगे तो सेम, क्योंकि स्क्वायर से नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन डजेंट मैटर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। अगर आप सी भी ट्राई करेंगे तो यू विल नॉट गेट 0, एंड इससे आपको पता चल जाएगा कि वो आंसर नहीं है। चलो एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते हैं। सो हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिला है विद 45 ऑब्जर्वेशंस। और हमें बताना है कि अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। सो हम इस टेबल से डायरेक्टली मीडियन तो नहीं बता सकते, बट हम ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि किस क्लास में मीडियन फॉल करेगा। सो रिमेंबर, अगर ऑड नंबर है तो मीडियन का फॉर्मूला है n+1, मतलब मीडियन रैंक। कौन से नंबर, कौन से वैल्यू पे तुम्हें मीडियन मिलेगा, दैट्स n+1 डिवाइडेड बाई 2। सो 46 डिवाइडेड बाई 2 इज 23। सो जो 23rd वैल्यू है हमारी, 23rd ऑब्जर्वेशन, वो हम स्टार्ट करेंगे बॉटम से। यहाँ पे तो सिर्फ 5th ऑब्जर्वेशन तक हम पहुँचेंगे, यहाँ तक 14 तक, और यहाँ पे बिटवीन 15th एंड 29th ऑब्जर्वेशन होंगी। जो हमारी 23rd ऑब्जर्वेशन होगी वो इसी क्लास में आएगी, कैटेगरी में आएगी। सो दैट मीन्स अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 30, बिकॉज द मैक्स वैल्यू द मीडियन कुड बी इज 30। ओके फ्रेंड्स, हम आ गए हैं क्वेश्चन 10 पे। सो ओ है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। सो वी हैव ए बी एंड सी डी एंड दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। सो ओ ओरिजिन नहीं है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एंड एंगल बी ओ सी इज 80, एंड उन्होंने बोला है कि ओ ए एंड ओ डी आर इक्वल। सो द ट्राइंगल्स ओ डी ए and OBC are which of these? So first of all, ये दोनों sides equal है, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी आइदर आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ए डी बी क्या इनके इक्वल है, लेकिन हम वो खुद डिटर्मिन कर सकते हैं। अगर ये एंगल 80 डिग्रीज है तो ये एंगल भी 80 डिग्रीज ही रहेगा। सो दैट मीन्स कि बाकी दोनों एंगल्स के लिए कितना बचा है, सिर्फ 100 डिग्रीज, क्योंकि टोटल सम होगा 180 डिग्रीज। सो दैट मीन्स दिस ट्राइंगल कैन नॉट बी इक्विलैटरल। ये दोनों एंगल्स 80 डिग्रीज ऑल्सो नहीं हो सकते। सो दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। जो नेक्स्ट फैक्ट है कि वो सिमिलर हैं या नहीं, दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द थियरम। अगर दो कॉर्ड्स ऑफ द सेम सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दे विल इन फैक्ट क्रिएट टू सिमिलर ट्राइंगल्स। सो अगर वो इक्विलैटरल हैं या आइसोसेलेस, वो हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन इन फैक्ट ये दोनों सिमिलर तो होंगे ही होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज आइसोसेलेस एंड सिमिलर। All right then, question 11. So ये question पूछ रहा है कि what are the roots of the quadratic equation? Like what type of roots are they? So हमें याद रखना है कि हमारा एक quadratic formula होता है, उसका जो discriminant हो सकता है उससे हमें पता चल सकता है अगर हमारे roots real हैं या नहीं है। So first of all हम वो calculate करेंगे। So remember d is equal to b squared minus 4 times a times c. So यहाँ पे हम calculate करेंगे 1, क्योंकि b हमारी है 1 -4 टाइम्स 1 अगेन, क्योंकि a भी 1 है, टाइम्स -1 बिकॉज ऑफ c। सो ये जो वैल्यू हमारी आएगी वो है 5, +5। दैट मीन्स क्योंकि हमारा स्क्वायर रूट जो है वो नेगेटिव नहीं है, दैट मीन्स आवर रूट्स आर बोथ रियल। दैट मीन्स b कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। So now we have three options. First of all, are the two roots equal or are they distinct? So remember, quadratic formula will have the negative b plus or minus the square root of the discriminant, right? So since there's a plus or minus, that means there have to be two distinct roots. So this cannot also be the right answer. And then finally, since we'll have a square root of a number, and square root of 5 cannot be simplified any rational number, so that means the roots will have to be irrational and distinct. So question 12 is a really simple substitution wala question hai. You just have to figure out what is tan theta and multiply that by 3. So the angle is 30 degrees. So when we have an angle of 30 degrees, what is the value of tan theta? So sine over cos will be 1 over √3. And if you multiply that by 3, we will just get 3 over √3. Simple. Very easy question.
चलो क्वेश्चन 13। सो इसमें लिखा है कि सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो है वो 396/7 सेंटीमीटर क्यूब एंड वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया. सो बेस्ड ऑन दिस वॉल्यूम वी कैन डिटरमिन व्हाट द रेडियस ऑफ द स्फीयर और हेमिस्फीयर इज, राइट. सो हमारी इक्वेशन है कि 2/3 पाई आर क्यूब्ड is equal to 396/7. और अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आर क्यूब्ड के लिए. सो वी विल गेट 396/7 जो राइट साइड पे है, एंड हम बाकी जो टर्म्स है लेफ्ट साइड की उनको फ्लिप करके मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 3/2, एंड क्योंकि पाई को उन्होंने बोला 22/7 लेना है तो फ्लिप करके वो हो गया 7/22. तो यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाएंगे. 396 डिवाइडेड बाई 2 इज 198 and 22 goes into 198 also 9 times. So हमारा जो फाइनल आंसर है वो है कि r cubed is 27. That means r is 3, of course, right? That is the cube root of 27. So अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया फॉर्मूला में 3πr². That means if we substitute r equals to 3 we get 3 into 22/7 क्योंकि पाई का वैल्यू वही लेना है हमने, and r squared is 9. That means our final answer will be 3 into 3 squared, 27 times 22/7. So यहाँ पे हमें पता है 27 into 22 is 594. So B is the correct answer. Question 14. In a bag containing 24 balls, 4 are blue, 11 are green and rest are white. मतलब कितने white हैं? अगर 4 blue हैं, 11 green है, मतलब blue और green combined हो गए 15 and total में 24 है. That means 24 minus 15. 9 of the balls are white. Okay, that's important. And one ball is drawn at random. What is the probability that the drawn ball is white? So simple हो गया, हमने already number calculate करा है. Probability is number over total. So the answer is 9/24. And if we simplify 9/24, divide both numerator and denominator by 3, we will get 3/8. So the correct answer is B. Question 15 पे चलते हैं. So the point on the x-axis nearest to the point -4, -5. अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे वो ट्रिक भी कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट दे दें जो x-axis पे है ही नहीं. तो सबसे पहले ये चेक करो कि सारे पॉइंट्स x-axis पे हैं, जो नहीं है उनको एलिमिनेट कर दो. इन दिस केस तो सारों के y वैल्यू जो है वो 0 है, मतलब सब x-axis पे है. अब हमें देखना है कि नियरेस्ट कौन सा है. 0 0, -4 0, -5 0, स्क्वायर रूट ऑफ 41 0. इस क्वेश्चन में शॉर्टकट है. हमेशा जो नियरेस्ट पॉइंट होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द गिवन पॉइंट. सो अगर हम ऐसे कोऑर्डिनेट ग्राफ ड्रॉ करें, सो ये है हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस है ना. हमारा जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे है, -4 -5. तो अगर हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. आप पाइथागोरस सोच लो, अगर हम कोई भी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करेंगे वो ज़्यादा लंबा होगा इससे. सो ये पॉइंट कौन सा होगा डायरेक्टली जो फॉलो करके ऊपर जाके x एक्सिस पे फॉल करेगा? वेल, it will be the point with the x coordinate of the given point. That means the answer is -4 0. जो पॉइंट डायरेक्टली x एक्सिस पे ऊपर जाके होगा परपेंडिकुलर टू द गिवन पॉइंट, दैट इज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज बी. इन 16 ये बहुत एक सिंपल सा डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन? तो ये तो सिंपल है, मीडियन का डेफिनेशन ही है मिडल मोस्ट. अगर सबको सॉर्ट करके डालोगे जो सबसे सेंटर वाला होगा, या अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो जो सेंटर 2 का जो एवरेज होगा वो तुम्हारा मीडियन है. सो इसका तो डेफिनेशन है सीधा सीधा, ये आंसर है मीडियन. जी क्वेश्चन 17, ये वही बता रही थी मैं जो आपको. अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. तो सबसे पहले जो हमारा आंसर है, क्योंकि वो पॉइंट मांग रहा है, इट हैज़ टू बी ऑन द एक्स एक्सिस. तो सीधा सीधा हम कौन से आंसर एलिमिनेट कर दें? बी, ये तो है ही नहीं एक्स एक्सिस पे, इसका वाई वैल्यू 0 नहीं है. डी, इसका एक्स वैल्यू है 0 लेकिन वाई वैल्यू तो 0 नहीं है. ये दोनों एक्स एक्सिस पे है ही नहीं. हमारा 50% तो क्लियर हो गया. हमने बाकी दोनों में से बस डिटर्मिन करना है कि क्या करेक्ट आंसर है. सो बाकी के क्वेश्चन पढ़ते हैं. दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 -3 and 5 6 in the ratio 1 to 2. Okay.
सो अगर हम छोटा सा स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी हमारी हेल्प हो जाएगी। 2 -3 मतलब पॉइंट ए यहाँ पे कहीं पे, और 5 6 वो यहाँ पे कहीं पे, है ना। तो ये जो लाइन है, कौन सा पॉइंट होगा जो इनको डिवाइड करेगा इनटू द रेशियो 1:2। सो तुम इसको दो तरीके से ट्राई कर सकते हो। या तो तुम एक्स एक्सिस में तुम्हारा विड्थ है टू गो फ्रॉम 2 to 5, उसको आप कर लो डिवाइड इन द रेशियो 1:2, उससे भी करेक्ट आंसर मिल जाएगा। या वाई एक्सिस में, सो अगर हम 2 to 5 देखें, जो इंटरवल है 2 to 5, ये नंबर लाइन पे अगर हम देखेंगे तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये 1:2 रेशियो में डिवाइड होगा। बीच में कौन से नंबर है, 3 और 4, है ना। अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर दें 3, तो ये हो गया 1 डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो गया 2, हो गया ना 1:2 रेशियो, सिंपल। सो यही करेक्ट आंसर है 30। अगर हम 4 पे डिवाइड करेंगे 40 पे, तो ये हो गया 2:1 रेशियो। सो ध्यान रखना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फटाफट लास्ट वाला मल्टीपल चॉइस भी कर लें कवर। क्वेश्चन 18, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। सो सबसे पहले टोटल होगा, कितने कार्ड्स होते हैं एक डेक में, 52, ये याद रखना है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। सो 52 तो डिनोमिनेटर में होगा ही होगा प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। सबसे पहले रेड कार्ड्स, ठीक है। फेस कार्ड कौन से होते हैं, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। किंग, क्वीन और जैक, ये 3 होते हैं फेस कार्ड। सो ये 3 टाइप्स के कार्ड हर शेप में होते हैं ना, डायमंड्स में भी होते हैं, हार्ट्स में भी होते हैं। और कितने रेड शेप्स होते हैं, 2। सो 3 into 2, 6 टोटल फेस कार्ड्स हैं जो रेड कलर के हैं। सो हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो होगा 6/52, वो हो गया 6 न्यूमरेटर है, 52 डिनोमिनेटर है, मतलब आंसर है 3/26 डी। So friends, that's all for today, and tomorrow we will cover the remaining questions for the CBSE practice paper that was released for 2024-2025. In the meantime, if you have any questions, please feel free to comment, and do like, share and subscribe. Thank you.